Hello guys, I am Dr. Devendra Mishra, working as assistant professor in chemistry at Bidla Institute of Applied Sciences, right? Also running this tetrahedron chemistry classes channel, and here are the links available to approach me. Hello friends, welcome back to the tetrahedron chemistry classes. So guys, if you remember in my last class of lubricants and the lubrications, I have introduced the mechanism of the lubrications and the functions of the lubricants. Okay, if you can recall, then you can find I have completed that thin film lubrication as well as the thick film lubrication, right? Two of them actually, right? And my last method of lubrication is your extreme pressure lubrication. Okay, so what is the need of that extreme pressure lubrication and how do we do that? Okay, all these things we'll try to find the answer in this particular lecture. Okay, तो इतना आप ध्यान में रखेंगे. So extreme pressure as the name suggest, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा. प्रेशर का मतलब जो लोड पड़ता है मूविंग स्लाइडिंग रोलिंग सर्फेसेस के ऊपर, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा. ओके, सो दिस शुड बी रिमेंबर्ड. So first of all, you can see in this particular slide, see here, you can see when the moving or the sliding surfaces are under very high pressure and very high speed. Okay, so obviously in that case, when the pressure is too high and the speed is too high, obviously there would be a uh, enormous amount of the frictional heat. Okay, because this frictional heat would be due to the attainment of the local temperature, actually due to this high speed and the high pressure. इतना याद रखेंगे. Okay, you can imagine in that manner. Say for example, say if this is a particular piston. Okay, and this piston actually, say for example, is rubbing or moving on this particular surface, and you can see the load is very high. So here you can see this is the load. Okay, and as well as this movement is very fast. Okay, this movement is very fast, and if it is actually revolving around this, so this revolution is very high. So what will happen? Very high frictional heat will generate in that case. So when this happens, actually, then your ordinary oils like lubricating oils and say whatever you used in thick film and the thin film lubrication, it won't be survive here actually, right? So they survive, the survival of those liquids would be difficult in that case. तो क्या होगा जब सर्वाइवल होगा नहीं इतनी ज़्यादा फ्रिक्शनल हीट से, ऑयल आपका इवापोरेट होकर बाहर जा सकता है. ठीक, अब क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि सारा का सारा लुब्रिकेंट आपका यहाँ से स्लाइड करके एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाए और बीच में फिर ये जगह खाली रह जाए. सो इस केस में कुछ स्पेशल हमको रिक्वायरमेंट होती है. ओके, सो व्हेन द मूविंग और द स्लाइडिंग सर्फेसेज आर अंडर वेरी हाई स्पीड एंड द प्रेशर, a high local temperature is attained. Under such conditions, liquid lubricants fails to stick to the moving parts and may decompose and even vaporize, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. So to meet this extreme pressure condition, स्पेशल एडिटिव्स आर एडेड टू द मिनरल ऑयल्स. तो जो भी मिनरल ऑयल आप इससे पहले यूज़ कर रहे थे, चाहे वो एनिमल ओरिजिन हो, चाहे वो आपके से वेजिटेबल ओरिजिन हो, उन सब में कुछ एडिटिव्स ऐड कर दिए जाए और उन एडिटिव्स को आप एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स बोलते हैं और इस मेथड को एक्सट्रीम प्रेशर ल्यूब्रिकेशन बोलते हैं. एंड से देन द ऑब्वियस क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर दीज एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स. तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं. जैसे आप मान लीजिए कोई क्लोरीनेटेड एस्टर ले लीजिए, या आपके फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड्स ले लीजिए, या सल्फ्राइज्ड ऑयल ले लीजिए. तो ये क्या करते हैं, जो मेटल आपके साथ होती है, ऐसे फॉर एग्जांपल कि जैसे ये मेटल सरफेस है, ठीक, तो ये जो सल्फर का फंक्शनल ग्रुप है, या आपका फॉस्फोरस से कोई फंक्शनल ग्रुप है, या क्लोरीनेटेड एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, ये इसकी मेटल के साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं और बॉन्ड फॉर्म करके परमानेंटली इसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं और तब ये आराम से लुब्रिकेशन का काम भी करते हैं. और इनकी खास बात ये होती है कि अगर ये टूट जाए फिल्म किसी तरीके से, तो तुरंत ये रिएक्शन करके फिल्म दोबारा से बन जाती है. दिस इज द यूटिलिटी ऑफ दीज एक्सट्रीम प्रेशर additives. Okay, so now you can see here these additives form on the metal surfaces more durable films capable of withstanding high loads as well as the high temperature. Additives are the organic compounds like chlorine, that is chlorinated, not chlorine organic compound, but it is the chlorinated ester. Okay, and you may use the sulfurized oil and you may use the phosphorus, like your tricrysyl
फॉस्फेट। दिस क्रिसिल यू ऑल नो, क्रिसॉल तो आप जानते ही हैं। एक अगर मॉलिक्यूल इस तरीके से बनाया जाए फिनॉल का, ओके, और इसमें एक सब्सटीट्यूशन कहीं से अगर मैं मिथाइल ग्रुप का दे दूं, देन दिस इज नोन एज द क्रिसॉल। तो अगर इन क्रिसॉल के 3 डेरिवेटिव मैं ले लूँ और तीनों डेरिवेटिव अलग लगा के फॉस्फोरस से अटैच करूँ तो ट्राइक्रिसिल फॉस्फेट बनता है। और ये सारे के सारे मेटल्स के साथ रिएक्शन करके एक एडिटिव फिल्म बनाते हैं। वो फिल्म हाई टेम्परेचर और हाई लोड पे आपकी खराब नहीं होती, और खराब होती भी है तो तुरंत रिप्लेनिश हो जाती है। So this is the idea about the extreme pressure lubrication which you should know. Okay, now you can see this is the picture here. See, as I was explaining in my last slide, so this is your phosphate, okay, and see, you can think in that manner. In that case, earlier there would be your OH, right, and there would be OH again. So see, it's actually ortho derivative, not meta derivative. In the previous slide I have made the cresol in the little different way. Not different way, actually it was wrong, it was the meta derivative. I have made this ना, बट ये ऐसा है नहीं। ये आपका क्या है, ये आपका ऑर्थो डेरिवेटिव है। ऑर्थो डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पर आपका OH होगा, ओके, एंड दिस पोजीशन विल हैव योर मिथाइल, ओके। तो यहाँ से आप हाइड्रोजन हटाते चलिए और फॉस्फोरस से जोड़ते रहिए। सो दिस इज ट्राइक्रिसिल फॉस्फेट, और ये देखिए ट्राइक्रिसिल फॉस्फेट का सैंपल है जो कि ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की तरह काम करता है। तो ये एक्सट्रीम प्रेशर में यूज होते हैं। ठीक इसी तरीके से यू कैन सी हेयर, दिस इज सल्फराइज्ड कटिंग ऑयल। तो इस ऑयल में सल्फर की आपकी बॉन्डिंग रहती है, और ये एक्सट्रीम प्रेशर पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से एक सैंपल यहाँ पे ये पाम ऑयल है। पाम ट्री आप जानते ही हैं। उस पाम ऑयल में अगर आप क्या करते हैं, मिथाइल एस्टर्स लगा दें और क्लोरीनेटेड इसको कर दें, तो ये भी एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेंट्स की तरह यूज़ हो सकता है। तो ये सारे के सारे लुब्रिकेंट्स हैं। सी हाउएवर इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, बट यू शुड नो certain additives like triglycerol phosphate, right, chlorinated ester, then sulfurized oil. These 2 or 3 names you should remember, okay. Then guys, features of the extreme pressure lubrication. See, all these things I have already explained in my first slide, but you can see little more applications here in this particular slide. So in that case you can see, so extreme pressure lubrication greases. So now these are actually what, not your phosphates and other things, right? And if the phosphates and the sulfurized oils and your say chlorinated esters are there, now they would be in the greasy form, semi solid, not in the perfect oil. So when these extreme pressure lubricants, especially when they are the grease, they are compatible with the all seal materials, plastic and the पेंट्स। तो देखिए रेंज बहुत ज़्यादा हो रही, पेंट के साथ भी यूज़ हो सकते हैं और प्लास्टिक के साथ, और इसके साथ साथ आपके ये सील मटेरियल के साथ भी यूज़ हो सकते हैं। तो इनकी एक रेंज जो है काफ़ी बढ़ जा रही है एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशंस की, ओके। तो इन सरफेसेस पे बहुत आराम से यूज़ हो सकते हैं। देन सुपीरियर एंटीवियर प्रॉपर्टीज़। तो एंटीवियर प्रॉपर्टीज़ तो सुपीरियर रहती ही इनकी है, मैंने बताया, अगर टूटते भी हो तो फिर बन जाते हैं। Then third, excellent protection against the rust and the corrosion. So this is the prime function of any lubricant. Nothing special here, okay. And next point, outstanding oxidation resistance and thermal stability. This feature is very very important. जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा, सॉरी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो हाई टेम्परेचर वहाँ पर अटेंड होता है, तो यूर ऑयल में ऑक्सीडाइज, लेकिन ये ऑक्सीडेशन से रेजिस्टेंस है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है एयर की प्रेजेंस में, और साथ ही साथ इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे थर्मली स्टेबल भी रहता है। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, ओके। एंड वेन एवर यू यूज़ द एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेंट्स, यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, द फ्लैश पॉइंट शुड बी वेरी वेरी हाई। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर नॉट अवेयर अबाउट द फ्लैश पॉइंट। अब मे बी अगर आपने पढ़ लिया हो इससे पहले ही, बट ऐसा माना नहीं जाता कि आपने पढ़ लिया होगा इससे पहले ही इसको, ओके। लेकिन चलिए, फिर भी किसी ने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। कि क्या होता नहीं होता है तो आने वाली स्लाइड में हम आते हैं। तो फ्लैश आने वाली स्लाइड्स में हम इसको डिस्कस करेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्लैश पॉइंट को। ये ज़्यादा होना चाहिए, और साथ ही साथ विस्कोसिटी इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ओके। और होना क्या चाहिए, होता ही है इनका, तो इसीलिए ये इनकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, ओके। एंड साथ ही साथ लॉन्ग लाइफ रेजिड्यू भी इसमें रहता है। सो लास्ट पॉइंट इज़ नॉट सो वेरी स्पेशल, बट द फर्स्ट 5 पॉइंट they are actually good one, okay.
तो दिस इज द पिक्चर ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन। देखिए कहीं पे आपके इंटरनल कंबस्शन इंजन्स की बात चल रही है, ठीक है, जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पे देखिए ये ऊपर से आपके इस तरीके से ऑयल आ रहे हैं, ये आपकी मशीनरी जो है पिस्टन टाइप के सब आपके नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज जस्ट द पिक्चर टू grasp the things. Now the applications where we can use these. Okay, this is important. तो ये जो कार है आपकी उनमें यूज़ होते हैं। तो पिछली वाली जो लास्ट स्लाइड थी वो लगभग लगभग मान लीजिए कि उसी कार का ही किसी का इंटरनल पार्ट है आपका। ओके, ऐसा मान सकते हैं। एंड सी, अब ट्रक्स भी आप ले सकते हैं क्योंकि देखिए वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, स्पीड भी ज़्यादा होती है। जितने भी रिक्रिएशनल व्हीकल्स हैं, ये जेसीबी का पिक्चर यहाँ पे दिखा रखा है, देखिए इसमें भी यही यूज़ होता है, एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन। आपको पता है लोड बहुत ज़्यादा रहता है इसके ऊपर, अगर आपने जानते हैं जेसीबी। ओके, तो जेसीबी फॉर योर जनरल नॉलेज क्या है ये एक्चुअली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक डच मशीन है। और ये जेसीबी जो इसका नाम है, ये इसके पेटेंट इनके अगेंस्ट है। ये साइंटिस्ट का नाम है जोसेफ सिरिल बेमफोर्ड। इनका नाम क्या है? जोसेफ सिरिल बेमफोर्ड। तो इनके नाम पे ये जेसीबी है। दिस इज़ फॉर योर जनरल नॉलेज। ओके, देन कमर्शियल फ्लीट्स, जितनी भी कमर्शियल फ्लीट्स हैं, चाहे आपकी ये फ्लीट्स आपकी से नेवी में आप ले सकते हैं, वहाँ पर भी हो सकती हैं। ओके, या कहीं और स्पेशल आपकी जो कार व्हीकल्स हैं वो फ्लीट्स हैं, वहाँ पर भी ये यूज़ होता है। इसके अलावा जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पर भी यूज़ होता है। सो नाउ इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, बट यू शुड रिमेंबर दिस पर्टिकुलर नेम। ओके, देन ऑफ कोर्स योर ऑफ रोड इक्विपमेंट्स। ऑफ रोड इक्विपमेंट्स का मतलब यही जेसीबी टाइप के जो होते हैं उसकी बात आप कर सकते हैं। देन ऑफ कोर्स योर मेराइन इक्विपमेंट, यहाँ पर भी यूज़ होता है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में ट्रैक्टर वगैरह हैं, सब हैं, वहाँ पर भी यूज़ होता है। एंड यू नो द रेसिंग कार, वहाँ पर भी यूज़ होता है। सो दीज आर द फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द extreme pressure lubrication. So if you know this much of the detail of your extreme pressure lubricant, that would be sufficient for your examination point of view. Okay, especially for the first year students. I am not talking about the students who are doing somewhere say mechanical engineering and all these things, right, where this actually lubricants and lubrications, it's a full course, right, or the full paper, वहाँ की बात नहीं है, but this is sufficient for the first year students. Fine. So now next, okay, now see guys, I have completed the lubricants and the lubrication methods. Now according to your syllabus, I am not going into the very much detail of the properties and all these things. I am only covering or completing that part which is there in your syllabus. Okay, I see, I am covering more than your syllabus, but it is again what not the very extensive one. So आप देख सकते हैं कि आपके जो सिलेबस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसी ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिस पे आपको एक न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में मिल सकता है, या एक शॉर्ट नोट 2.5 मार्क पे आपके एग्ज़ाम में मिल सकता है। ये एक्सपेरिमेंट भी आपके सिलेबस में है, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस लॉकडाउन पीरियड वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म दोज एक्सपेरिमेंट्स इन द लैब। Okay, but if the time permits and the conditions, if the condition will become well or okay and the college will open, then definitely I'll actually try to give you this particular equipment so that you can perform that experiment also. Okay, so viscosity determination. So now you should know the details of the viscosity. So by definition you can see I have written here, viscosity is the property of the fluid that determines its resistance to फ्लो। ओके, कोई भी फ्लूइड है जो कि आपका फ्लो कर रहा है, मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो कर रहा है। अगर मान लीजिए ये है आपका, इस फ्लूइड को हम फ्लो करवा रहे हैं, इसके ये कोई पाइप है, इसके अंदर फ्लूइड फ्लो करवा रहे हैं। तो आपको पता है कि ये एकदम लगातार आपका अलग अलग तरीके से फ्लो करते हैं, कोई बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, कोई बहुत स्लो फ्लो करता है। तो इनके बीच में इनकी जो स्पीड में जो आपका डिफरेंसेस आ रहा है, ये इसकी विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी है। तो विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि नेचुरल फ्लो में एक रेजिस्टेंस डालती है, विच आई हैव डिफाइंड हेयर। देन देयर कम्स द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी आप देख सकते हैं, जनरली ईटा से हम इसे शो करते हैं, बट दिस Greek term is not very important because sometimes you can find the people also represents this eta for the viscosity only. So absolute viscosity क्या है actually में, it's a little bit of mathematical. It is a tangential force per unit area which is required to maintain the unit viscosity gradient between the two parallel layers. Okay, जैसे इसका क्या मतलब है ये जो बताना चाह रहा है, मान लीजिए एक ये लेयर है, ठीक है,
और एक ये दूसरी पैरेलल लेयर है। ओके, तो अब देखिए इसमें इन पैरेलल लेयर्स के बीच में क्या होगा, आपकी डिस्टेंस का डिफरेंस होगा। ओके, ग्रेडियंट आप समझते ही है ना, डिस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाने पे कोई पैरामीटर अगर दो जगह चेंज होता है तो वहाँ से आप ग्रेडियंट निकालते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने पढ़ाई है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़ते ही हैं। ओके, तो अगर आपने वेलोसिटी ग्रेडियंट को 1 आपने मेंशन करना है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को मैं वी जी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपने इसकी वैल्यू 1 रखनी है, ठीक है, इन दोनों पैरेलल लेयर्स के बीच में, तो इसके लिए जितना टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा वो आपकी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी होती है, और इसका यूनिट है पॉइज। ओके, इसका यूनिट ये सीजीएस में है, पॉइज है। देन देयर कम्स द नेक्स्ट पॉइंट विच इज एब्सोल्यूट काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और ये कुछ भी नहीं है, इट इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फॉर एनी फ्लूइड। मान लीजिए कोई फ्लूइड है, उसके लिए डेंसिटी आपको दे रखी है और उसके लिए आपको ईटा आपको दे रखा है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एब्सोल्यूट काइनेमेटिक viscosity, AKV I am writing. Okay, so you will write for this one, it is eta divided by density of the fluid. Okay, now यहाँ पे एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात है, क्योंकि जो ईटा है इसकी यूनिट आपने देखा सीजीएस में पॉइस की होती है, तो डेंसिटी जो आपकी होती है ग्राम पर सीसी में या दी है, तो दोनों को यूनिट वाइज भी सेम करना पड़ेगा अगर आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके, एंड द यूनिट फॉर दैट एब्सोल्यूट काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द स्टोक्स। तो ये एक यूनिट है जिसको स्टोक्स कहा जाता है। अभी इस स्टोक्स को आप आगे भी पढ़ने वाले हैं, व्हेन आई विल डिस्कस द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे, बट वहाँ पे फिर कंफ्यूजन नहीं करेंगे कि वो उसकी यूनिट है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ओके गाइज, सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ योर viscosity. Okay, and now you very quickly you can see the effect of the temperature and the pressure, right, on your viscosity. Okay, so I have to clear all these things, so I'm doing this. Okay, fine. Okay, okay, this I have done now, fine. Okay, then you can see the इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर गाइस। ठीक है, तो सबसे पहली बात इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, योर विस्कोसिटी वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम होगी, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए आपको जब भी कोई लुब्रिकेंट आप ऐड करते हैं किसी सरफेसेस के बीच में, तो ये श्योर होना पड़ता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे कहीं विस्कोसिटी कम ना हो जाए, या टेम्परेचर कम होने पे विस्कोसिटी बढ़ ना जाए। थ्रू आउट द ऑल सीजन ऑफ द ईयर एक्चुअली ये आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द विस्कोसिटी। ओके, तो इनवर्स रिलेशन आप विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली एट हायर टेम्परेचर हैवियर ऑयल्स आर यूज्ड। सीधी सी बात है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और आपकी मान लीजिए तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी कम होगी, तो वहाँ से आपका ऑयल उड़ सकता है या हट सकता है। तो इसलिए पहले से ही खूब हैवी ऑयल यूज़ किया जाए जिनकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है हाई टेम्परेचर पे। ओके, एंड एट लो टेम्परेचर ऑब्वियसली लाइट ऑयल्स वुड बी यूज्ड बिकॉज देयर इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन देम। ओके, देन द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है प्रेशर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम करेंगे तो विस्कोसिटी कम होगी, तो टेम्परेचर के अपोजिट चलता है। सो दिस मच ऑफ थिंग अबाउट योर विस्कोसिटी यू शुड नो। ओके, then guys you can see once again significance of the viscosity। भाई इसकी ज़रूरत क्या है? So the significance of the viscosity is that see it will guide us, the viscosity or will guide us, or the viscosity index will guide us what kind of the lubricant we can use so that it would become a good lubricant or good lubricant for a particular surface throughout the season। Okay, throughout the all 4 seasons of the year actually। तो वहाँ से आपको ये गाइड पता चलती है। तो इसके लिए एग्जांपल आप देख सकते हैं, देखिए ये एक लाइट ऑयल हमने ले रखा है, तो इसकी विस्कोसिटी कम हो। लाइट ऑयल का मतलब लो विस्कोसिटी। ओके, लाइट ऑयल का मतलब होता है लो विस्कोसिटी। ओके,
तो लो विस्कोसिटी है तो इजीली यू कैन पोर दैट फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर। एंड व्हेन दिस लाइट ऑयल इज यूज, तो यहाँ पे कहाँ पे यूज़ होगा ये वाला ऑयल? जहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, टेम्परेचर काफ़ी कम होगा, आपने लास्ट स्लाइड में देखा है, और प्रेशर भी कम होगा, तो वहाँ पे आपका ये यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? देन देयर कम्स द हैवी ऑयल्स। तो हैवी ऑयल कहाँ पे होंगे? जहाँ पे स्पीड बहुत स्लो है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ये दो एक्सट्रीम एंड्स हैं। और ये जो मीडियम आपके ऑयल रहते हैं, जिनकी विस्कोसिटी ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम होती है, इनके जो हैं वेरिएबल एप्लीकेशंस, वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं, और ये कई जगह एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं। ओके, इफ़ यू वांट टू नो देन यू कैन फाइंड इन योर टेक्स्ट बुक where these light, heavy and the medium oils are used. Fine. Okay. So guys, this is very very important and you may have the numerical based on this. और मैं अगर कभी आपको बीच में अभी इसके कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद मैं आपको असाइनमेंट भी इससे रिलेटेड देने वाला हूँ, तो वहाँ पे ये आपको ज़रूर काम आने वाला है। ओके, तो इसको आप ज़रूर देखेंगे। सो नाउ गाइज आई एम डिस्कसिंग योर viscosity index, as I have written over there, viscosity index. So for that viscosity index you have this particular formula, Vi is equals to L minus U divided by L minus H into 100. ओके, तो अब इसमें आपने समझना है कि ये L क्या है और U क्या है और H क्या है। तो देखिए, इसमें दो तरीके के ऑयल आपके सेलेक्ट किए जाते हैं। एक तो गल्फ ऑयल यूज़ किया जाता है, गल्फ ऑयल जो गल्फ से मिलता है, ठीक है। और दूसरा जो आपका होता है वो आपका कुछ पेंसिल्वेनिया से ऑयल निकलता है, जो कि एक बेटर क्वालिटी का ऑयल है, ठीक है। बेटर क्वालिटी तो नहीं कहेंगे, प्रॉपर्टीज़ उसकी थोड़ी सी डिफरेंट है टेम्परेचर के हिसाब से। तो ये एक्चुअली में जो यू और एच है, ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। ये एल जो है ये तो गल्फ ऑयल के लिए रिलेटेड होता है, एच जो है वो आपका पेंसिल्वेनिया ऑयल के लिए यूज़ होता है, और यू जो है ये तो सिर्फ एक विस्कोसिटी का पैरामीटर है, इतना आप समझ लीजिए। सो दीज थ्री टर्म्स आर देयर, यू कैन सी हेयर। Vi is the viscosity of the index which is under investigation or the under test. L is the viscosity at the 100 degree centigrade of low viscosity standard oil having a viscosity of 0. तो this is not O, this is 0, और 0 और O एक सी बात है वैसे तो, लेकिन 0 आप माने इसको, ओके, O भी कह दिया जाता है। तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे लो विस्कोसिटी एक स्टैंडर्ड ऑयल लेंगे जिसका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे विस्कोसिटी 0 होगी, और वो ऑयल एक्चुअली गल्फ ऑयल होता है। So you should remember that particular point. If you are using the Gulf oil, that means that Gulf oil at 100 degree Fahrenheit will have the viscosity index of 0. ठीक है, पहली बात। And also having the same viscosity as the oil under test at 210 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका मतलब मान लीजिए X जो है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन वाला था, तो 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितनी विस्कोसिटी आपकी, सॉरी फ़ारेनहाइट पे 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जितनी विस्कोसिटी इस X की होगी, 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इस गल्फ ऑयल की विस्कोसिटी भी उतनी ही होगी। तो इस टेम्परेचर पे दोनों की विस्कोसिटी बराबर होगी, और जबकि 100 डिग्री पे इसकी विस्कोसिटी 0 होगी, दैट इज L। ओके, एंड U इज व्हाट? इट इज विस्कोसिटी एट द 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ द ऑयल अंडर टेस्ट। और बाकी जो U है, ये U क्या है? जो टेस्ट आपका टेस्ट ऑयल है से X, इसकी 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितनी विस्कोसिटी है, ये वो वैल्यू है। फाइन, देन देयर कम्स द H। H इज द सेम थिंग, लेकिन यहाँ पे जैसे इससे पहले गल्फ ऑयल में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 0 विस्कोसिटी थी, लेकिन जो ये H वाला ऑयल है इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसकी विस्कोसिटी भी 100 ही होगी, और ये पेंसिल्वेनियन ऑयल स्टैंडर्ड ऑयल यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पे अगर आप अपने सैंपल की और इस पेंसिल्वेनिया ऑयल की विस्कोसिटी लेंगे, तो वो दोनों भी सेम होंगी, जैसा कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। ओके, सो विस्कोसिटी एट द 100 डिग्री फ़ारेनहाइट of the high viscosity standard oil having VI of 100, that is the Pennsylvanian oil, and also having the same viscosity as the oil under test at 210 degree Fahrenheit.
So this formula you should remember, and if you know that particular formula, then you can very easily solve this particular question. You can see here, this is the example one, and all this I have taken from your Sashi Chawla book. Okay, so you can see here the what the numerical says actually. An oil of an unknown viscosity index. Okay, that mean unknown viscosity index, that mean यही आपने measure करना है. Okay, has a Sebald universal viscosity of 60 second at 210 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो क्या है, 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो सेबेल्ट यूनिवर्सल विस्कोसिटी 60 सेकंड में है, एंड ऑफ 600 सेकंड्स एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो विस्कोसिटी 600 सेकंड है और 210 डिग्री पे ये 60 सेकंड है. अब आप ये कहेंगे कि भाई ये सेकंड वेकंड का मामला कहाँ से आ रहा है. तो एक्चुअली में इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है. आप क्या करते हैं, जब विस्कोसिटी मेजर करते हैं तो उसमें ऑयल की जो ड्रॉप्स होती है उसको एक एक ड्रॉप को आप गिरना आप अलाउ करवाते हैं एक सर्टेन वॉल्यूम से दिस इज़ द फिक्स वॉल्यूम, और आप इसको गिरा रहे हैं यहाँ से नीचे एक एक ड्रॉप करके. तो टोटल ड्रॉप आपकी जितनी आपने ले रखी है, जितनी गिरनी चाहिए नीचे, ओके, उसका टाइम पीरियड होता है कि कितनी देर में गिरी हुई है. तो जो हल्का होता है वो जल्दी गिर जाता है, जो भारी होता है वो देर में गिरता है. ये आपको पता होना चाहिए. तो अगर 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 60 सेकंड पे गिर जा रहा है, ऑफ कोर्स इसकी विस्कोसिटी कम है, तो ये गल्फ ऑयल की तरह ट्रीट हो सकता है. ओके, और जो देर में गिर रहा है वो आपका, और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे अगर ले सकते हैं आपका, तो हो सकता है ये आपका सैंपल का ऑयल हो भाई. ठीक है, ऑयल अंडर टेस्ट होना चाहिए ये वाला, क्योंकि 100 डिग्री पे वही लिया जाता है. नाउ द हाई विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड, that is the Pennsylvanian oil, has the Savold viscosity of 60 seconds at 210 degree Fahrenheit and 500 seconds at 100 degree Fahrenheit. Okay, दो डेटा आपको दिए हैं. The low viscosity index standard of Gulf oil has viscosity of 60 seconds at 210 and 800 seconds. तो तीन पैरामीटर आपके पास हैं. एक पैरामीटर आपके पेंसिल्वेनियन ऑयल के लिए है, दूसरा पैरामीटर आपके गल्फ ऑयल के लिए है, एंड द थर्ड पैरामीटर इज द ऑयल विच इज अंडर टेस्ट. सो आई कैन राइट यूटी फॉर दैट वन, अंडर टेस्ट. ठीक है, तो इनके लिए डेटा आपने रखना है. नाउ यू कैन सी दैट इज एल, राइट. एल आपको पता है, ये गल्फ ऑयल का जो डेटा होता है उसके लिए दिया जाता है, और गल्फ ऑयल के लिए टोटल कितना है, 800 सेकेंड आ रहा है. अब 800 सेकेंड कैसे आ रहा है, सी यू कैन सी हेयर 600 तो ऑलरेडी ये दिया हुआ है. ठीक है, और 600 के बाद अगर आप देखें 200 भी कहीं पर, इसके लिए 600 ये हो गया. देन यू कैन सी पेंसिल सेवर्ड 60 60 50 100 द लो विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल सेवर्ड विस्कोसिटी. ओके, दिस इज फाइन. ओके, दिस इज गिवन, 800 इज गिवन. ओके, एट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये 800 एल की वैल्यू हो गई. और जो H है हाई विस्कोसिटी, दैट मीन पेंसिल्वेनियन, इसके लिए वैल्यू भी दे रखी होगी. ओके, फॉर दिस इट इज गिवन एज 600 सेकेंड, सॉरी, फॉर दिस इट इज गिवन हाई विस्कोसिटी इज 500 हेयर. यू कैन सी सेकेंड एट दिस पेंसिल्वेनियन ऑयल. ओके, इसके लिए 500 दे रखी है. एंड U जो अंडर टेस्ट है उसके लिए 600 दे रखी है. मैंने बताया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये अंडर टेस्ट है. तो सारा डेटा तो आपको गिवन है, तो बस आपने क्या रखना है, 800 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 800 माइनस 500, बाकी आप विस्कोसिटी निकाल दीजिए. ओके, तो बस यही आपने ध्यान में रखना है कि L क्या होता है और आपका U क्या होता है और H क्या होता है. इसके लिए तीन डेटा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. सो इफ़ यू केयरफुली सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आपके जो अंडर ऑयल टेस्ट है इसके लिए जो वैल्यू दे रखी है वो लगभग 600 सेकंड में ड्रॉप होता है बोल रहा है. ठीक है, 600 सेकंड्स में. और जो आपका गल्फ ऑयल है, गल्फ ऑयल के लिए वो वैल्यू इसने करीब दे रखी है 800 सेकंड के आसपास. ठीक है, फिर ये पेंसिल्वेनियन ऑयल है, इसके लिए इसने ये वैल्यू दे रखी है 500 की. ठीक है, ये तीन पैरामीटर आपने यूज़ करने हैं. तो ये एक एग्जाम्पल है इसी से रिलेटेड, जो कि ऐसा तो नहीं होगा बट डिफरेंट एग्जाम्पल होगा. वहाँ से हम आपको क्वेश्चन आपके सेशनल में, सॉरी अभी असाइनमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा. सो दिस इज़ योर विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स. फाइन. Now these are the apparatus which can be used to determine the viscosity index, but unfortunately we are not able to perform that experiment in the lab. तो ये सेबल्ट आपका विस्कोमीटर है.
तो देखिए सेबल्ड विस्कोमीटर में अभी बात कर रहे थे, देखिए ये ऑयल बाथ ऊपर से ले रखा, ये हीटिंग अरेंजमेंट है, और ये थर्मामीटर ऊपर से डाला है, ये आपका ऑयल जिसमें टेस्ट कर रहे हैं वो है, और ये ऑयल ड्रॉप वाइज नीचे की तरफ को गिर रहा है। तो कितनी देर में यहाँ से यहाँ तक खाली होगा, 60 ml इसने यहाँ से ले रखा है, वो आप टाइम यहाँ से नोट करेंगे, एंड दैट टाइम एक्चुअली जो आपने पीछे न्यूमेरिकल में देखा था वहाँ पर आएगा। तो अल्टीमेटली मैंने करना क्या चाहिए था, पहले उसको ये वाली स्लाइड को पहले दिखाना चाहिए था, तब शायद ज़्यादा क्लियर होता, बट इट इज़ क्लियर। ओके, तो सेबोल्ड विस्कोमीटर आप यूज़ करेंगे तो सेबोल्ड विस्कोसिटी हो जाएगा, और ठीक उसी तरीके से आप रेडवुड विस्कोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड रेडवुड विस्कोमीटर आर ऑफ टू टाइप्स, ओके, फर्स्ट इज विस्कोमीटर नंबर 1 एंड द विस्कोमीटर नंबर 2। जनरली हमारी लैब्स में विस्कोमीटर 1 ही होता है क्योंकि ये यूनिवर्सल है, भाई उसी प्रिंसिपल पे काम करेगा। यहाँ पे ऑयल भर लीजिए, नीचे ड्रॉप इसकी गिराते रहिए, 50 ml कितनी देर में भर रहा है वो टाइम आप नोट कर लीजिए। ओके, जो भी आप टाइम नोट करेंगे वो आपको यहाँ पे दिख सकता है ना, वो टाइम आप यहाँ पे नोट करेंगे सारा, उसी टाइम के हिसाब से आप ये वैल्यूज़ यहाँ पर रखेंगे। ओके, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ये ना समझें कि ये आपका जो एल और एच है या यू है ये आपका किसी विस्कोसिटी की यूनिट में होगा, क्योंकि विस्कोसिटी को हम सिर्फ ड्रॉप वाइज गिरा के ही काउंट करते हैं, तो इसलिए ये हमेशा टाइम में आपको दिया जा रहा है। ओके, द मे बी कुछ अलग तरीके से भी दिया जा सकता है, विल सी इन द न्यूमेरिकल्स। ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए मैं सिर्फ इतनी ही बात करूँगा, और नेक्स्ट क्लास में आई विल कंप्लीट दैट टॉपिक। ओके, थैंक यू वेरी मच।